An impulse, you know this. If a large force acts for a short interval of time, this is known as the impulse. Since large force acts for a short interval of time, the force and the time separately cannot be measured. So, the product of the force and the time interval is known as the impulse. If I note down, if a large force acts for a short interval of time, if a large force acts for a short interval of time, this is known as the impulsive force. This is known as the impulsive force. This is known as the impulsive force. Since the force acts for a short interval of time, as a result, force and the time separately cannot be measured. So, the product of the force and the time, and the time duration is known as the impulse, In other words, we can say that the total effect of the force for a short interval of time, which produces the change in momentum, is known as the impulse. Which produces the change in momentum is known as the impulse. Thus, impulse is denoted by J, and J is equal to F into delta T. Here, F, it is the vector quantity. J is denoted by J is equal to F into delta T. This is the impulse. SI unit is Newton second. SI unit, that is the Newton second. Here, impulse, graphical representation for impulse. Here see, if constant force acts here, from T1 to T2, note down, if constant force acts on a body from T1 to T2, if a constant force acts on a body, draw the graph. If constant force acts on a body from time T1 to T2, then the area of the shaded region
gives the magnitude of impulse gives the magnitude of the impulse, that is impulse is equal to impulse, it is equal to area of rectangle ABCD, area of rectangle ABCD. This is equal to force, here force into T2 minus T1. Here, so the impulse it is F delta T. F delta T. Here is it is this is the force, this width that is force, this length it is fine, length into width, this will be the area. Here when constant, when the variable force acts on the body, note down, when the variable force acts on the body, when variable force acts on the body, then if a graph is drawn between T1 to T2, a graph is drawn between force and the time, between force and the time. Again, the impulse gives the area of the shaded region. Again, the impulse is equal to the area of the shaded region, that is impulse dj. एक्चुअली होता क्या है, जहाँ भी हमारे पास ऐसे कर्व फॉर्म में होता है वहाँ पर हम एक अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, एक रेक्टेंगल अज्यूम करते हैं और इसको हम मान लेते हैं dt टाइम इंटरवल, और इसको मान लेते हैं अगर एट एनी इंस्टेंट फोर्स कांस्टेंट वेरिएबल है तो इस छोटे की जो एरिया है लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो जाता है एफ डी टी। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, T1 टू T2, तो इसकी एरिया हम इंटीग्रेशन मेथड से ही निकालते हैं। बचपन से ही पता है कि इंटीग्रेशन मेथड हम छोटे छोटे रेक्टेंगल को यहाँ से जोड़ते जोड़ते पूरी एरिया को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करना, ऐड करना। हम लोग सर्किल की एरिया बचपन से बता दिया जाता है कि एरिया इक्वल टू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, लेकिन कैसे आया आज तक कभी नहीं बताया, 6-7 से ही हटा दिया जाता है। वो कैसे आया अभी हम लोग उसको डिराइव करते हैं 12th में आने के बाद। 12th में हम लोग मैथ में पढ़ोगे इंटीग्रेशन मेथड में इलिप्स की एरिया, सर्किल की एरिया, जो कर्व पार्ट होते हैं, हम लेंथ विड्थ एरिया बस इतना क्लियरली जानते हैं कि लेंथ विड्थ कर देते हैं, वही उसी लेंथ विड्थ का कंसेप्ट कर्व पार्ट के लिए भी लगाते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो हम एकदम स्मॉल स्ट्रिप एज्यूम करते हैं, स्मॉल स्ट्रिप, उसकी एरिया निकालते हैं एफ डी टी। डी टी बहुत छोटा, तो उसमें हम मान करके चलते हैं कि ये यहाँ पे डी टी यहाँ भी बराबर है, ऐसे जरूरत यहाँ पर बराबर नहीं है, लेकिन इतना छोटा होता है कि हम बराबर मान करके चलते हैं तो एफ डी टी
और कहाँ से कहाँ तक, T1 टू T2। इसी तरह से हम सर्किल के एरिया भी निकालेंगे, इलिप्स के एरिया निकालेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, सबकी एरिया हम लोग निकालते हैं। लेकिन अभी हमको इतना जानना है कि कर्व एरिया अगर वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा है, देन वी कैन कैलकुलेट हियर this impulse is equal to f dt from T1 to T2। इस तरह से हम कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, what is the impulse momentum theorem? We will write according to Newton's second law, force F is equal to dP by dt। Newton's second law, the force is equal to rate of change of momentum। Therefore dP it is equal to f dt, and if momentum changes from p1 to p2, if momentum changes from p1 to p2 and time from T1 to T in time and from P1 to P2 here, momentum changes from P1 to P2 in time interval from T1 in time interval from T1 to T2। Therefore, total change in momentum dP from P1 to P2 and F dt from T1 to T2. Here, dP it is equal to P from P1 to P2, it is equal to Ft from T1 to T2. This implies that here P2 minus P1 is equal to F T2 minus T1. Delta P is equal to F into delta T. And this is the impulse. This is F into delta T, it is known as the impulse, and delta P is change in momentum. Change in momentum. This is known as the impulse momentum theorem. No. This is known as the impulse momentum theorem. Change in momentum is equal to impulse. Change in momentum is equal to impulse. This is known as the impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem. That is impulse is equal to change in momentum. That is impulse is equal to change in momentum.
इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यही हमारा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। व्हाट इज द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम? द impulse is equal to change in momentum. It is known as the impulse momentum theorem. अब देखना, F is equal to dp by dt। अगर टाइम हमारा अगर छोटा हो जाएगा फोर्स बहुत अधिक लगेगा ना। If dt is smaller then force will be larger। इसीलिए जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, अगर सीमेंटेड रीजन पर गिरती है, सीमेंटेड सरफेस पे, तो चोट अधिक लगती है। अगर गद्दे पर गिरे तो कम चोट लगती है, क्योंकि जब हम सीमेंटेड पे गिरते हैं तो वेलोसिटी आते समय भी होती है, अब तुरंत जीरो होती है। मोमेंटम बहुत तेजी से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होता है। dt समय में dt इज वेरी स्मॉल इन दैट केस, सो फोर्स विल बी लार्जर। अगर गद्दे पर गिरते हैं तो गद्दे पर होता क्या है, टाइम, इट टेक्स लार्जर टाइम टू कम टू रेस्ट। इसीलिए गद्दे पर कोई चीज अगर गिरती है तो उसमें चोट कम लगती है। बिकॉज द क्रिकेटर्स ऑलवेज टेक ड्यूरिंग द कैच, दे लोअर्स हिज हैंड टू कैच द बॉल, बिकॉज दे इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू बॉल कम टू रेस्ट। एज ए रिजल्ट, when they increase the time, then decrease the force. As a result, the smaller force acts on the body, on hand. The China wares, they are always wrapped in the extra papers. चाइना बोन के जो बर्तन आते हैं पत्थर के होते हैं ना, कप वगैरह, हमेशा किसी पेपर में लपेट करके आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोलाइड करते हैं, जर्क लगता है तो कोलाइड करने से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोलिजन होता है, लार्ज फोर्स एक्ट करता है। लार्ज फोर्स एक्ट करेगा तो टूट जाते हैं। इसी नाते हमेशा या तो थर्माकोल में या तो पेपर में उसको रैप करके रखा जाता है, जिससे ये जो है वो, नहीं तो चाइना वेयर्स, ये सब रीजन्स हैं इसके, इंपल्सिव फोर्स के रीजन है कि लार्ज फोर्स शॉर्ट इंटरवल के लिए लगता है तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है फोर्स का। फोर्स उतना ही सॉकर्स आर प्रोवाइडेड इन द बाइक्स, कार्स, सॉकर जानते हो कुछ दबता है ना, तो अगर सॉकर न रहे तो गाड़ी एक ही दिन में टूट जाए। इसीलिए पेशेंस भी एक तरह का जीवन में साकर होता है। पेशेंस, जिसके पास पेशेंस नहीं होता है अपने जीवन से उठ जाते हैं बड़े जल्दी। एजुकेशन है एक पेशेंस, बड़े धैर्य पूर्वक शांति से बैठा है, जीवन में साकर प्रोवाइड करते हैं। कितनी कठिन परिस्थितियां आती हैं, ये धैर्य रूपी जो साकर है हमें बैलेंस करके जीवन में रखता है, ये हमें हिलने नहीं देता। नहीं तो जिसके पास यही पेशेंस नहीं होता वो सुसाइड कर लेता है, और जिनके पास पेशेंस होता है कठिन से कठिन परिस्थितियों में रह करके जीवन का संचालन करते हैं और हिस्ट्री में एक नया नाम दर्ज कराते हैं। विपरीत परिस्थितियां, जितने महापुरुष हैं सबके पास पेशेंस रूपी साकर रहा। तो एक टाइम इंटरवल, पेशेंस में क्या होता है, हम झेलते हैं, अपना टाइम इंटरवल बढ़ाने की क्षमता हमारे पास होती है। चलो देखता हूँ ये परिस्थितियाँ आपकी इसको फेस करेंगे। मतलब ये तो मैकेनिकल तो है, ये मैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बता रहा हूँ कि इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इस नाते जीवन में पेशेंस रूपी साकर जरूर रखना चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। चाइना, इस एग्जाम में पूछे गए जाते हैं, व्हाई द चाइना वेयर आर रैप्ड इन द एक्स्ट्रा पेपर्स, the thermocol, sockets are provided in the vehicles, what is the importance of it, and when a body falls on a cemented surface, gets the severe injuries, then on the cushion, गद्दे पर अगर गिरे उसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा चोट लगती है किसी बॉडी को। तो उसके सबके पीछे रीजन यही है कि टाइम इंटरवल during the collision, time interval is very small, so the large force acts.
दिस इज द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? झटका होता है ना, लार्ज फोर्स एक्ट्स, तो कहते हैं झटका लग गया। लार्ज फोर्स एक्ट्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो हिंदी में उसको झटका कहते हैं। और साइंस झटके को भी मेजर करती है, कुछ चीज छोड़ती नहीं साइंस, क्योंकि मैं जब हम व्हीकल चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पल्स ही लगता है। यहाँ से मुर्धवा तक चले जाओ 10 बार इम्पल्स लगेगा, उस साकर हमें बैलेंस कर देता है, इसीलिए साकर प्रोवाइड किया गया। इसीलिए मेडिटेशन सिखाया जाता है। लाइफ में भी इतने झटके लगते हैं, तुरंत एकदम पॉजिटिव है, अचानक सब निगेटिव हो, फिर उसमें पेशेंस रखो और वह लाइफ को आगे ले जाता है। दिस इज द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। You can note down your question on this here. A ball moving with a ball moving with a momentum of 5 kg meter per second. A ball moving with a momentum of P given है 5 kg meter per second. Strikes against a wall at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree, and reflected at the same angle, calculate the change in momentum. Here you see, means question is here, a ball moving with a momentum of 5 kg meter per second strikes against a wall. This is the wall. At an angle of 45 degree, try to understand, it is in normal, this is the momentum P, and strikes at an angle of 45 degree. And reflected at the same angle, ये यहाँ से दीवार से 45 पर ऐसे कोलाइड करती है बॉल, और लड़ने के बाद यहाँ से ये 45 डिग्री पर ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, दैट इज 45 डिग्री रिफ्लेक्टेड बैक with the same momentum. Try to understand. At the same angle, at the same momentum. Calculate the change in momentum. We have to calculate the change in momentum. Try to understand. Here, P will have the two components along this. It is P cos 45, and here along this P sin 45. What is momentum of this? इसका कंपोनेंट इधर जाएगा. This is P cos 45 and P sin 45. ये सी इसका कंपोनेंट इधर इनिशियल है हमारे पास, इसको P1 कह सकते हैं. इट इज P1 एंड इट इज P2. चेंज इन मोमेंटम अलोंग वॉल, हम देख रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है. नो चेंज इन मोमेंटम हियर. चेंज इन मोमेंटम अलोंग वॉल, चेंज इन मोमेंटम.
along wall. Here you see, you can consider if it is P1, if it is P2, then change in momentum P2 minus P1. That is P2 minus P1 means P sin 45 minus P sin 45. This is equal to 0. मतलब बॉल अगर वॉल से टकराएगी तो दीवार के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दीवार में मोशन प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये हमने पता कर लिया कि देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, फॉर इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हम करें, चेंज इन मोमेंटम अलोंग बॉल, चेंज इन मोमेंटम इन बॉल, तो P1 here is for change in momentum for ball, change in momentum for ball की मोमेंटम में कितना चेंज होगा? Here you see P1 it is equal to P1 की डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लें तो P2 की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हो रही है। तो here you see P1 it is equal to P cos 45 and P2 it is equal to minus P cos 45. Try to understand. यहाँ पे गया तो अभी जाते समय ये डायरेक्शन, लेकिन रिटर्निंग बैक के बाद इसकी डायरेक्शन बदल जाती है, डायरेक्शन चेंजेस, दैट इज माइनस। सो चेंज इन मोमेंटम हियर डेल्टा P it is equal to P2 minus P1 and this is equal to minus P cos 45 minus P cos 45 and you know this cos 45 is 1 upon root 2, तो ये हमारे पास से वैल्यू हो जाएगी minus 2P cos 45 और P is 5, momentum P is 5, it is given minus 2 into 5 into cos 45 1 upon root 2, and so this comes out to be minus 5 root 2 हो जाएगा ना, root 2 minus 5 root 2 kg meter per second। इतना मोमेंटम हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट हियर यू सी द चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P we get here minus 5 root 2, that is kg meter per second. It means minus 5 into 1.414, वैल्यू आ जाएगी minus 0.7. Bismuth momentum, change in momentum is minus 0.7 kg meter per second. The negative sign indicates that change in momentum take place, change in momentum take place away from the wall, away from the wall, that is in opposite direction of the ball, that is in opposite direction of the ball. हम पढ़ेंगे इसके बाद, हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ बचपन से पढ़ते आए हो कि
every action there is a equal and opposite reaction. According to Newton's third law, every action there is a equal and opposite reaction. जितना भी एक्शन होगा रिएक्शन उतना ही अधिक होगा. Larger the action, larger will be reaction. And without reaction, no meaning of the action. ये भी ध्यान रखो. Without reaction, no meaning of the action. Means without reaction, action is meaningless. अगर हम जैसे रोप खींचते हैं लोग, टग ऑफ वार होता है, हम केवल अकेले खींचना शुरू कर दें, ओनली एक्शन नो रिएक्शन, कोई मतलब नहीं. अगर हम किसी को मारें कोई चोट नहीं लगेगी, न हमें कोई चोट लगेगा न कहीं पर, क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा, एक्शन का रिएक्शन होता है. तो इफ देयर इज ए रिएक्शन देन द एक्शन इज मीनिंगफुल, अदरवाइज मीनिंगलेस, यूजलेस, नो मीनिंग. और एक्शन एंड रिएक्शन कहा जाता है कि जब हम एक बाल को वाल पे मार देते हैं तो बाल जो है वाल से दूर चली जाती है, दीवार वहीं रहती है, जबकि दोनों इक्वल अपोजिट लगाते हैं. तो क्यों बाल में एक्सेलरेशन क्रिएट कर गया, वाल में कुछ नहीं हुआ? व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? वाल हेवी है. Actually, action and reaction they act on two different bodies. एक बॉडी पे नहीं लगता. Action and reaction act on two different bodies. ध्यान रखना. ये हमारे पास है, एक A है एक B है. A ने B पर FBA फोर्स लगाया B, और B ने A पर FAB फोर्स लगाया. Both are equal and opposite. Both on the board same force acts here. Means FAB it is equal to minus FBA, equal and opposite direction. But both acts on the different bodies. इसका मास अगर हम 10 kg ले लें, इसका मास अगर 1 kg ले लें, तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं F इक्वल टू एम ए. अगर एम ए की बात करें इधर तो 1 kg के इसमें हमारे पास अगर दोनों से फोर्स तो दोनों सेम है. सपोज 10 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन बोथ, इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन. सपोज ऑन द बोथ द बॉडीज 10 न्यूटन फोर्स एक्ट्स, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन फॉर ए? ए पर फोर्स FAB लगा, तो हम जानते हैं कि FAB इट इज इक्वल टू MA. FAB हमारे पास अगर 10 है, मास इसका 1 है, एक्सेलरेशन ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेम फोर्स एक्ट्स फॉर लार्जर बॉडीज. फॉर B की बात अगर करें तो हमारे पास FBA it is also how much? 10. Both act the apply the same force. So this FBA MA here it is 10 kg. Acceleration is A is equal to 1 meter per second square. You see this larger acceleration both acts on the two different bodies. अगर दोनों एक ही बॉडी पर लग जाए तो बॉडी विल एट रेस्ट, देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम टू एनी बॉडी. बट एक्शन एंड रिएक्शन, टू फोर्सेस ऑलवेज एक्ट्स ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज. एज ए रिजल्ट द स्मॉलर बॉडी अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ दैट in the smaller body larger acceleration is produced, that is it moves off from the body. और heavier body में देख रहे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, अगर हम कभी एक कार एक ट्रक से टकरा जाए तो
कार दूर तक टिका जाती है, ट्रक में थोड़ा सा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा। एक्शन रिएक्शन दोनों में सेम होता है। तो ध्यान में रखना, न्यूटन्स थर्ड लॉ का बहुत एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। ये है यहाँ पे सैनिटाइजर, ये भी बैलेंस। एक्शन रिएक्शन, वेट डाउनवर्ड है, रिएक्शन अपवर्ड है। मतलब इफ ए बॉडी इज प्लेस्ड हियर, mg डाउनवर्ड, रिएक्शन अपवर्ड, तो r प्लस mg दोनों का नेट फोर्स मिला के 0 है, ध्यान में रखना। इसीलिए बॉडी, अगर इसका mg अधिक होता तो तोड़ के नीचे चला जाता, समझानी टेबल 2। अगर इस पर से रिएक्शन अधिक हो जाए तो ये इस पे नहीं जंप कर जाएगा, और दोनों अगर बराबर हैं तो इसीलिए R इज इक्वल टू माइनस mg, इट इज माइनस w वेट। एक्शन रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, and it means both are equal and opposite. This is the reason this is stable on this table. Clear? यही है एक्शन रिएक्शन। जब हम चलते हैं तब भी हमारे पास एक्शन रिएक्शन काम करता है। When we move along the earth, we presses the earth. Earth apply a reaction force. Here, when we move, we presses the earth. Earth apply a reaction, reactional force कह सकते हैं, and this reactional force has the two component, F cos theta and F sin theta. F sin theta balances our weight, और reaction force F cos theta provide the force against the friction. फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा यही रिएक्शन फोर्स है। स्विमिंग के समय एक्शन रिएक्शन होता है, एक्शन और रिएक्शन। तो ये जितना भी व्हीकल्स चलती है हर जगह एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन का पूरा एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। तो इस तरह से हम इसको थर्ड लॉ देखते हैं। रिकॉइलिंग ऑफ गन में भी एक्शन रिएक्शन चलता है, उसमें थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी चलता है। तो अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये ध्यान में रखना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इक्वल और अपोजिट होते हैं, लेकिन वन बॉडी इज एक्सेलरेटेड एंड अदर रिमेन कांस्टेंट। द रीजन इज mass are different, they act on the different bodies, so the same force produces the larger acceleration in the lighter body. Both acts